بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا شمائل ترمذی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو پچھلی کچھ احادیث آئی تھیں ان کے اندر کچھ الفاظ آئے تھے جن کی امام ترمذی علیہ الرحمہ نے وضاحت بیان کی اور ان کی معنی بیان کی کہ ان الفاظ کی کیا کیا معانی ہے۔ تو آج ایک اور حدیث پاک سنیں گے جو کہ حضرت امام حسن کے مامو جان سے مروی ہے۔ امام حسن روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مامو جان حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے اوصاف کس طرح بیان کرتے تھے، تو ان کا اوصاف بیان کرنا آج کی سبق کا موضوع ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالت، میں نے اپنے مامو جان ہند بن ابو حالہ سے میں نے سوال کیا۔ تو یہ جو ہند تھے نا، یہ حضرت بی بی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی تھے۔ نیچے جب دیکھیں گے نا 20 نمبر جو حاشیہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے انما ہند کان ھذا خالا للحسن، امام حسن کے یہ خالو جان تھے، یعنی اخو امہ من امہا، یعنی ان کی جو والدہ تھی نا ان کی والدہ کی والدہ، یعنی ان کی جو نانی جان تھی۔ تو حضرت امام حسن کی والدہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، ان کی والدہ ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے یہ کیا تھے؟ بھائی تھے۔ اور خدیجہ بن ابو حالہ، یہ ٹھیک ہے۔ وکان وصافن ان حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والے تھے، امام حسن کہتے ہیں۔ وَأَنَا أَشْتَحِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں مشتاق تھا کہ وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے حضور کے اوصاف میں سے کوئی چیز بیان کریں تاکہ میں ان کو سنوں اور میں ان پر عمل کروں، اپنانے کی کوشش کروں۔ تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، فخمن مفخمن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خوش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دکھنے والے تھے، یعنی خود اچھے تھے اور لوگوں کو بھی اچھا لگنے والے تھے۔ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے اور شان والے تھے۔ مطلب ایک تو بندہ خود اچھا ہوتا ہے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو حضور کی ذات اس طرح کی نہیں تھی، حضور خود بھی اچھے تھے اور لوگوں کو بھی اچھا لگنے والے تھے۔ یتلألؤ وجہہ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدر کے چاند کی طرح، یعنی 14ویں کے چاند کی طرح، ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ جس طرح ماہ بدر کا چاند ہوتا ہے نا 14ویں کا چاند، تو اس کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ استاد صاحب، ا- جی یہ جو سارے چاند سے مشابہت دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی تو چاند میں تو ایک داغ بھی ہے۔ نہیں بھائی، من کل الوجوہ جب بھی کوئی تشبیہ دی جاتی ہے، جب بھی کوئی مثال بیان کی جاتی ہے، تو من کل الوجوہ تو نہیں تشبیہ دی جاتی نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ روشنی کی طرح۔ زیدن زیدن کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر بھی کیا ہے جانور ہے تو زید بھی جانور ہے۔ مخصوص ایک چیز میں صفت بیان کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے اور اس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بھی داغ ہے تو یہاں بھی داغ ہے۔ یعنی اس کی روشنی کی طرح، یعنی جیسے۔ ہاں، جس طرح وہ چمکدار تھا اسی طرح حضور کا چہرہ بھی چمکدار تھا۔ جی استاد۔ اطول من المربوع، اور لوگوں کے درمیان درمیانے قد والے تھے،
जिस तरह लोग होते हैं ना, लोगों के दरमियान यानी न ज्यादा बुलंद कद वाले थे न कम कद वाले क्या थे, दरमियाने कद वाले थे। आगे कहते हैं अक्सर मिनल मुशज़्ज़बी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतवस्सित था। मरबू और मुशज़्ज़ब, मरबू बोलते हैं ज्यादा बुलंद को, और मुशज़्ज़ब बोलते हैं कम को, या मरबू बोलते हैं कम को और मुशज़्ज़ब बोलते हैं ज्यादा को। तो जो लंबा बंदा होता है उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कम था, और जो छोटा होता है उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बड़ा था। अतवल मिनल मरबू, छोटे कद वाले बंदे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील कद वाले थे। वह अक्सर मिनल मुशज़्ज़ब, और जो लंबे कद वाला होता है उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम थे, यानी दरमियाने कद वाले थे। आगे कहते हैं अजीम अल हामते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था। अजीम अल हामते, एतदाल के साथ हुजूर का सर मुबारक अजीम था। अजीम सर वाले थे लेकिन एतदाल वाला, सबसे ज्यादा बड़ा सर वाला नहीं, क्योंकि वो ऐब होता है। आगे कहते हैं रजिला शारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक किसी कदर बल हुए थे, थोड़े से बल खाए हुए। रजिला शारे, बल खाए हुए बालों वाले थे। इन इन फरकत हकीकतुहु फका, नहीं का, इन फकत हकीकतुहु, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग निकल आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ देते हैं। जैसे बालों को एक तरफ कंघी के साथ मांग निकाली जाती है ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ब खुद अगर मांग निकल जाती तो आप छोड़ देते हैं, वरना आप खुद मांग नहीं निकालते थे। व इल्ला फला, अगर वो मांग नहीं निकलती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकालते। फला यजावजु शारुहु शहमत उज़नैहि, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल, फला का ताल्लुक पीछे से है, और यजावज ये आगे मुस्बित फेले मनफी नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की लोग को तजावज कर जाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इतने बड़े होते हैं कि वो कानों की जो लो होती वो क्या हो जाती, उनसे भी तजावज कर जाते। इजा हुआ वफ़रहु, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ज्यादा होते हैं। अजहरल लौ ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत रंग वाले थे। अजहरल लौ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत अहसन रंग वाले थे। वासियल जबीन, कुछादी पेशानी वाले थे। वासियल जबीन, जबीन बोलते हैं पेशानी को, तो कुछादी पेशानी वाले थे। अजजल हवाजिबी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अबरू मुबारक खमवार थे। अजजब हवाजिबी, आपके अबरू मुबारक जो भवें होती हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खमवार थी, यानी बारीक थी। आगे कहते हैं सवाबिगा फी गैर करने, और गंजदान थी, बारीक और गंजदान थी। फी गैर करने, वो मिली हुई नहीं थी। जो भवें होती हैं ना, बाज लोगों की आपस में मिली हुई होती हैं, ज्यादा मोटी होती हैं तो आपस में नाक के ऊपर से मिल जाती हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भवें मुबारक थी, जो अबरू मुबारक थी, वो क्या थी, आपस में मिली हुई नहीं थी बल्कि जुदा जुदा थी। बैनहुमा इरकुन युदिर्रुहुल गदब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबरू के दरमियान इरकुन एक रग थी, जिसको गुस्सा जिसको गुस्सा
उभार देता था, या जो गुस्से की वजह से उभर जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अबरों के दरमियान एक रग थी। जब हुजूर को गुस्सा आता था, अब गुस्सा फरमाते थे, तो वो रग फूल जाती थी, उभर जाती थी। जैसे उभर आती है ना रग, इस तरह वो हो जाती थी गुस्सा के वक्त। अकनल, आगे कहते हैं अकनल इरनैन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बुलंदी की तरफ माइल थी। अकनल इरनैन, हुजूर की नाक मुबारक बुलंदी की तरफ माइल थी। लहू नूरुन यअलूहु, हुजूर के नाक के लिए, हुजूर के नाक पर एक नूर था, एक रोशनी थी जो उसको चमकाती थी। नाक को जो रोशनी, जो नूर चमकाता था। यहसिबुहु यहसबुहु मल्लम यतअम्मलहु अशम, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखता, तो वो उसको बड़ा शुमार करता। यानी जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा पहली मर्तबा देखता, तो उसे लगता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक बड़ी है, लेकिन हकीकत में वो बड़ी नहीं होती थी। जब हुजूर के करीब जाता था तो उसको नॉर्मली वो लगती थी, लेकिन दूर से देखने वाले को बड़ी लगती थी। कसिल लिहयते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर दाढ़ी वाले थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भरपूर बालों से भरी हुई थी। सैलल खिद्दैन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख की जो पुतली होती है वो निहायत स्याह थी। नहीं, सेयल खिद्दैन बोलते हैं रुखसार को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक हमवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिद्दैन बोलते हैं रुखसार को। सहलल खिद्दैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक क्या थे? हमवार थे। आगे कहते हैं दली अल फम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक एतदाल के साथ फराख था। यानी एक तो होता है ना बड़े मुंह वाला बंदा होना, तो इस तरह नहीं, एतदाल वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक था। मिफल जल असनान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दरमियाने वाले दांत हैं, उनके दरमियान थोड़ी सी बारीकी का फासला था। मिफल जल असनान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत दांतों वाले थे, लेकिन उनके दरमियान क्या थी, आज जो सामने वाले दांत होते हैं उनके दरमियान थोड़ा सा फासला था। ज्यादा फासला नहीं, ज्यादा फासला आ जाता है तो बंदा बदसूरत लगता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा फासला था। दकीकल मसरबत, मसरूबत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दकीक मसरबा वाले थे। मसरबा बोलते हैं जो सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर जाती है बालों की, तो उसको मसरबा कहते थे। यानी हुजूर की जात वो जात थी जिसके सीने मुकद्दसा से लेकर नाफ तक एक बालों की दकीक लकीर जाती थी। और हुजूर की गर्दन मुबारक इतनी खूबसूरत थी कि अन्ना उनकहु जीदुन दुमी जीदुन दुमीतुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इस तरह खूबसूरत थी जिस तरह मूर्ति की गर्दन साफ तराशी हुई होती है। जिस तरह मूर्ति पुतला होता है तो उसकी गर्दन अच्छे तरीके से उसको तराशा जाता है, तो हुजूर की गर्दन मुबारक भी इस तरह की थी। और हुजूर का रंग मुबारक कैसा था? फी सफा इल फिद्दते, जिस तरह चांदी का रंग होता है ना, तो रंगत में चांदी जैसी साफ और खूबसूरत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। हुजूर की गर्दन मुबारक चांदी की तरह क्या थी? खूबसूरत और साफ थी। मोतदिल मोतदिल खल के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतदाल खलकत वाले थे। बादिनुन मुतमासिकुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरगोश्त थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर गोश्त, पुरगोश्त थे, ये मतलब। सिवाल बतन व सदर, बतन
पेट के अलावा और सीने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, इसके अंदर गोश्त नहीं था। जिस तरह आज के दौर के अंदर कोई बंदा बड़े पेट वाला होता है या बड़े सीने वाला होता है, उसका सीना, उसकी छाती क्या होती है, बड़ी होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से इस तरह कुछ भी नहीं था। हुजूर वैसे तो पुरगोश्त थे, लेकिन पेट मुबारक और आपका सीना मुबारक इस तरह का नहीं था। अरीजो सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक क्या था, कुचादा था। आगे दें, बईदो मा बैना मिन कबैनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोनों मूंढे हैं, तो दोनों मूंढों के दरमियान एक फसल थी, एक फासला था। दखीमल दखीमल करादीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ों की हड्डियों, कवि करादीस बोलते हैं उस बंदे को जिसकी जोड़ों वाली हड्डियां क्या हो, एक कवि और मजबूत हो, करादीस उसको बोलते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ों की हड्डियों की, यानी आम तौर पर इसका तर्जुमा ऐसे कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की हड्डियां बड़ी और मजबूत हुआ करती थी। ठीक है। अनवरल मुतजर्रद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रोशन और चमकदार नजर आता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर अगर कोई कपड़ा ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक क्या होता था, चमकता था। मौसूल मा बैन लब्बते वसर्रते, नाफ और सीने के दरमियान एक लकीर की तरह से बालों की बारीक, एक बालों की एक लकीर हुआ करती थी। मौसूलुम बैनल लुब्बते वसुर्रते, सीने से लेकर नाफ तक, सुर्रा बोलते हैं नाफ को, हुजूर के सीने से लेकर और हुजूर के नाफ तक एक बालों की लकीर हुआ करती थी, बारीक। बेशेरिन यजरी कल खत्ते, लकीर की तरह। बेशेरिन यानी बालों की वो एक लकीर थी, यजरी बालों के साथ वो जारी होती थी, कल खत जिस तरह लकीर होती है, बंदा पेन से एक लकीर जिस तरह बनाता है ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की वो लकीर भी इस तरह की थी। आरिस सद्दैन वल बतन मा सिवा जालिका, सिवा जालिका के अंदर ये जो जालिका है ना, जालिका का मुराद, जालिका की मुराद वो लकीर है बालों की। तो उस सीधी लकीर के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेट मुबारक था वो भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छाती थी, छाती, सुद्दीयैन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दोनों छाती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, ये दोनों खाली थे। आरी मतलब खाली थे, किससे खाली थे, बालों से। आपके सीने पर भी बाल नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी बाल नहीं थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पर भी बाल नहीं थे, सिवाय वो एक लकीर थी बालों की जो सीने से लेकर नाफ तक जारी होती थी। काफी है इतना। अच्छी तरह से याद कीजिएगा, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछना।